हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू करेंगे। लाइन L is the bisector of angle A and B is any point on L. L is the bisector of angle A मतलब क्या हो गया कि this angle is divided into two equal angles and B is a point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. BP and BQ are perpendiculars from B on the arms of A. हमने एकदम फर्स्ट सेशन में बहुत पहले हमने देखा था कि आर्म्स क्या होता है। जब हम स्टार्टिंग में हम ज्योमेट्री में जा रहे थे, हमें आर्म्स पता है क्या होता है। तो BP and BQ are perpendiculars on the arms of angle A. Show that first triangle APB is congruent to triangle AQB. Triangle APB is congruent to triangle AQB. BP is equal to BQ. BP is equal to BQ. और B is equidistant from the arms of angle A. सेम चीज हो गई। अब L is the bisector of angle QAP. That is L is the bisector of angle QAP. इससे क्या पता चला? एंगल QAB is equal to angle BAP. करेक्ट, क्योंकि a line bisecting an angle divides the angle into two equal angles. तो two equal angles क्या हो गए? Angle QAB is equal to angle BAP. Correct? Now angle Q is equal to angle P, each 90 degrees, and angle Q is equal to angle P, each 90 degrees. And your third criterion is angle ABQ is equal to angle ABP. Angle ABQ is equal to angle ABP. Correct? So ये प्रूव हो गया। अब हमने शो किया, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB. Okay. So let's start. In triangle APB and triangle AQB, angle Q is equal to angle P, that is AB is equal to AB कॉमन था। एंगल ABQ is equal to angle ABP हमने प्रूव किया, एंड एंगल QAB is equal to angle PAB ये भी हमने प्रूव किया। सो ये क्या हो जाएगा? एंगल एंड साइड। सो ये क्या हो जाएगा? यूजिंग द विच क्राइटेरियन? देखो, दिस एंगल इज इक्वल, दिस एंगल इज इक्वल, दिस साइड इज इक्वल कॉमन, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप कौन सा यूज करोगे? AAS। सो यूजिंग द AAS क्राइटेरियन, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। करेक्ट। अब सेकंड आपको क्या चाहिए था कि B इज इक्विडिस्टेंट। Now since triangle APB is congruent to triangle AQB, तो corresponding angles equal है। तो corresponding angles equal है तो उसके sides भी equal हो जाएंगे, that is corresponding parts of congruent triangles are equal. तो BP is equal to BQ हो जाएगा। That is अब BP क्या था? perpendicular distance of B from AP, and BQ क्या था? perpendicular distance of B from AQ. Thus B is equidistant from the arms of angle A. ठीक है। Now next question. AC is equal to AE. यहाँ पे AC is equal to AE and AB is equal to AD. AB is equal to AD. ठीक है। Angle BAD is equal to angle EAC. Angle BAD is equal to angle EAC. ठीक है। Show that BC is equal to DE. Show that ये जो BC है, this is equal to this triangle का base side, that is DE. Let's start. Angle BAD, यहाँ पे हमें पता है angle BAD is equal to angle EAC given. ठीक है। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स में एंगल DAC ऐड कर दोगे तो आपको एक प्रॉपर ट्रायंगल मिल जाएगा। Adding DAC on both sides we get angle BAD
प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, दैट इज बी। देखो अब देखो, एंगल BAD प्लस एंगल DAC क्या हो जाएगा, एंगल BAC। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD, दैट इज योर एंगल EAD। करेक्ट, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी आर गिवन AB is equal to AD and AC is equal to AE. So in triangle ABC and triangle ADE, we get BC is congruent to DE. Correct? That is BC is equal to BE. Correct? Now next. AB is a line segment. AB is a line segment with P at its midpoint. मतलब P midpoint है लाइन AB का, मतलब AP is equal to PB. Correct? D and E are points on the same side of AB such that same side of AB मतलब क्या हुआ, AB के ऊपर के ही साइड में है, एक ऊपर एक नीचे नहीं है, डिफरेंट साइड्स में नहीं है, सेम साइड में है। Such that angle BAD is equal to angle ABE. करेक्ट, यहाँ पे दिया है एंगल BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB. Now show that triangle DAP, देखो यहाँ पे मैं कलर कर दे रही हूँ, triangle DAP is congruent to triangle EBP. ठीक है, आपको ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंड सेकेंड AD इज इक्वल टू BE, ये तो मिल जाएगा, जब आपको ये वाला मिल जाएगा सो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB गिवन। सो एंगल EPA में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा, एंगल EPD। अगर आप एंगल EPA में एंगल EPD ऐड करोगे तो आपको ये पूरा एंगल APD मिल जाएगा। करेक्ट, सो एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स वी गेट एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। एंगल EPA प्लस EPD क्या हो जाएगा, एंगल APD, एंड एंगल DPB प्लस एंगल EPD क्या हो जाएगा, एंगल BPE। करेक्ट, क्योंकि हमने BPD में ऐड किया EAD, तो आपको मिला BPE। करेक्ट, तो अब आप ट्रायंगल यूज कर सकते हो। नाउ आपको दोनों ट्रायंगल्स मिल गए, सो यूजिंग इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP गिवन। करेक्ट, नेक्स्ट एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, अभी हमने यहां पे देखो प्रूफ किया। करेक्ट, एंड एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE। ये कैसे, आपको दिया है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABD। ठीक है, BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल AB। ठीक है, ये दो एंगल जब इक्वल हो गए सो हमें ये भी पता है कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल PAD इज इक्वल टू PBE, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE। करेक्ट है ना, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल से चाहिए, तो जब अगर ABE इक्वल है उसका मतलब है कि PBE भी इक्वल होगा, एंड जब BAD इक्वल है मतलब PAD भी इक्वल होगा। एंड हमें P क्यों चाहिए, क्योंकि हमें हमारे दोनों ट्रायंगल्स में P वर्टेक्स इंक्लूडेड है। सो ये हो गया। यूजिंग द ASA क्राइटेरियन हमें क्या मिला, एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, नाउ यूजिंग ट्रायंगल्स DAP
and triangle EBP, we know that we proved that triangle DAP is congruent to triangle EBP. मतलब their corresponding parts are equal. So therefore AD is equal to BE. ठीक है? Now next, in a right angle triangle ABC, right angle triangle ABC, right angled at C, मतलब M is the midpoint of hypotenuse AB. आपको पता है कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में द लाइन ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज अ हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? सपोज ये ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? AC क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB. तो M मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का, मतलब AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा. C is joined to M and produced to a point D. मतलब क्या हुआ कि देखो, ये आपका बेस स्टार्टिंग ट्रायंगल था, ठीक है? यहाँ पे ये था A B C, ठीक है? दिस इज पॉइंट M विच इज योर मिड पॉइंट. अब ये C और M को इन्होंने जोड़ दिया. C और M को जोड़ने के बाद इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, ये पॉइंट D हो गया, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, माने इन दोनों का डिस्टेंस सेम है. DM इज इक्वल टू CM. पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B. तो सेम डायग्राम हो गया. देखो, आपको डायग्राम ड्रॉ करना भी आना चाहिए, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलती है कि कैसे फॉर्म हुआ है. क्वेश्चन से आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो. Point D is joined to point B. Show that triangle AMC is congruent to BMD. Triangle AMC is congruent to triangle BMD. Okay. Triangle angle DBC is a right angle triangle. अब जैसे हमें गिवन था कि एंगल ACB is a right angle triangle, वैसे ही आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल DBC is a right angle triangle. Third, triangle DBC is congruent to ACB. Triangle DBC is congruent to triangle ABC, माने ये बड़े वाले ट्रायंगल को भी हमें congruent प्रूफ करना है. And last, CM is equal to half of AB. CM क्या है? CM is equal to half of AB. ठीक है? तो वो किससे रिलेटेड है? अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि M is the midpoint of AB, तो हमें मिल जाएगा. Let's start. M is the midpoint of AB, that is BM is equal to AM. So in triangle AMC and BMD, DM is equal to MC given, correct? DM is equal to MC given. AM is equal to BM just proved, वहां पे हमने प्रूव किया. And angle AMC is equal to angle BMD, vertically opposite angles, correct? Vertically opposite angles, ठीक है? So हमें क्या मिल गया कि these two triangles are congruent to each other using the SAS rule. Why? Because side and angle. Therefore, using SAS criterion, triangle AMC is congruent to triangle BMD. अब सेकेंड, हमें सेकेंड क्या प्रूफ करना था? एंगल DBC is a right angle triangle. Since, अब देखो, since हमें ये मिल गया कि एंगल AMC is congruent to triangle BMD, therefore the corresponding paths are also equal. Corresponding paths are equal मतलब कि angle AMC is equal to angle BMD. They form a part of alternate angles. Therefore, AC is parallel to DB. Therefore, AC is parallel to DB, where your BC is the transversal. Correct? दो पैरेलल लाइंस में BC ट्रांसवर्सल है. जब ट्रांसवर्सल है मतलब सम ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. बट आपको दिया है कि BCA इज व्हाट 90 डिग्रीज, तो DBC क्या हो जाएगा? वो भी 90 डिग्रीज हो जाएगा. देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया?
पहले हमने प्रूव किया कि AC इज पैरेलल टू DB। तो जब ये प्रूव हो गया तो पता चल गया कि BC इज द ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल होता है तो हमें पता है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल, आर सप्लीमेंट्री। इसीलिए एंगल DBC प्लस एंगल BCA क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज। बट आपको पता है BCA इज 90 डिग्रीज, सो DBC कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। थर्ड प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD। अब आपको पता है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नाउ अब हमें ये प्रूफ करना है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DBC। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्रीज हमने जस्ट प्रूव किया था। BD इज इक्वल टू AC हमने ये प्रूव किया था, एंड BC कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा SS क्राइटेरिया, क्योंकि 2 साइड्स एंड 1 एंगल। यूजिंग द SS क्राइटेरिया एंड ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। 4, अब आपको क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। Since triangle DBC is congruent to triangle ACB, therefore the corresponding parts are also equal, that is DC is equal to AB. But आपको दिया है कि DM is equal to CM, तो CM क्या हो जाएगा, CM is equal to half of DC which is equal to half of AB। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया DC is equal to AB, so CM क्या हो जाएगा half of AB, hence proved। So what have we learned today? Today हमने आपका जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट किया। इसमें प्रूविंग सम्स थे, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड थे, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टर हो पाओगे, नहीं तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।